Let us read John. हम पढ़ेंगे यूहन्ना की 1 से 12 आयत तक 1 to 12. I will read in English, Sister Saba will read in Urdu. And you can even see here our monitor here. It has a word of God there. और But मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और जो सभा है वो उर्दू में पढ़ेंगी और आप इसको जो है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और वहां से भी रीड कर सकते हैं. But Jesus went to the Mount of Olives. मगर यीशु जैतून के पहाड़ पर गया. Now early in the morning he came again into the temple, and all the people came to him and sat down and taught them. सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery, and when they had set her in the midst, और फकीर और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा. they said to him, "Teacher, this woman was caught in adultery in the very act." ए उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what do you say? तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? This they said, testing him that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसके पत्थर मारे. And again he stooped down and wrote on the ground. और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, "ए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया?" So she said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. उसने कहा, "ए खुदावन, किसी ने नहीं." यीशु ने कहा, "मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना." Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in the darkness, but have the light of the life. यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा. आमीन. Amen. Hello, brothers and sisters. खुशामदीद मेरे प्यारे बहन भाइयों. When I was young, I used to like to watch video. जब मैं छोटा था तो मैं जो है वीडियोस बहुत देखता था. As I remember, in our house, there was one TV station with video in the one button. और मुझे याद है कि हमारे घर में एक टीवी स्टेशन था जिसके अंदर वीडियो और ये पूरा सेट होता था. My mother, she did not want us to watch TV continually. और मेरी माँ जो है वो नहीं चाहती थी कि हम मुसलसल जो है इन वीडियोस को देखे करें.
she always played the sermon for us. और वो हमेशा कोशिश करती थी कि वो सरमन जो है या खुदा का कलाम जो है वो उस वीडियो पर लगा दे और हम वो देखा करें। Through the radio, I mean the radio machine, when my mother put the tape, it is continually the sermon is coming out. और जैसे आपको पता है कि पुराने जमाने में वो कैसेट्स लगती थी और उस टाइम पर तो वो जब उस कैसेट को उस रेडियो में लगा देती थी तो वो कंटिन्यूसली जो है वो सरमन चलना शुरू हो जाता था। I didn't want to listen the sermon और मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था कि मैं उस सरमन को सुनूं, because I don't understand what does it mean. क्योंकि मुझे तो उसका मतलब भी नहीं पता होता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। So when my mother go out, और जैसे मेरी माँ बाहर जाती थी I turn off radio और मैं वापस अपना जो है वो रेडियो दूसरा जो इसको ऑफ करता था and I turn on the TV station with video. और मैं जो है टीवी लगा लेता था और उस वीडियो को देखना शुरू करता था। Video is like this kind of size. आप ये देख सकते हैं इस तरह का, When we put into the video machine, जब आप इस तरह की कैसेट जो पहले टाइम पर एक कैसेट होती थी जो बड़ी वाली वीडियो की पुराने टाइम की वो, this one start to play. और मैं उसको लगाकर स्टार्ट कर देता था। I like to watch those Japanese movie. और मुझे वो जापानीज मूवीज बहुत पसंद थी। You know, men they change into hero and they fight against the monsters. और उसमें होता था कि इंसान जो है वो अपना हुलिया चेंज करके एक हीरो बन जाते थे और जो मॉन्स्टर्स होते थे उनके खिलाफ दुश्मनों के खिलाफ लड़ते थे। So whatever the movie that we want, और जो भी टाइप की मूवी मुझे हमें चाहिए होती थी we put into the video machine. हम वीडियो मशीन में डालते थे Then it came out. और उसको जो है वो वीडियो देखना शुरू हो जाते थे। इट्स कॉल्ड VCR। VCR, you say VCR. यस, For us in Korean we say video. ओके। हम लोग VCR कहते थे उस टाइम पर, लेकिन कोरिया में वीडियो कहते थे। And now this VCR changed to CD, right? CD. और अब हम देखते हैं कि वही जो कैसेट्स हैं वो चेंज होके VCR से चेंज होकर अब CDs की शक्ल में आ गई। But even nowadays they don't use CD, but they nowadays use the small flash disk to और put अब हम into the देखते हैं कि laptop. खत्म हो रही है ऑलमोस्ट, और फ्लैश जो है एक छोटी फ्लैश जो है हम देखते हैं USB जो है वो यूज हो रही है। So what I want to say is, whatever is inside of this VCR, it comes out. तो कुछ भी उस VCR के अंदर जाता था वो बाहर आता था, यानी कि वो दिखता था। Even in our life also the same. और जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है। Whatever is in your heart, कुछ भी आपकी जिंदगी के आपके दिल के अंदर है, come out in your mouth. Come out through the heart. वो आपके मुंह पर आता है या आपके मुंह आपके Come दिल out से with your आता है। mouth. और Whatever is in your heart. जो कुछ आपके दिल के अंदर होता है वो आपके निकल के आपकी जुबान से बाहर आता है। Yes, isn't it? All of you. सही है ना? When you Yes. fight with your husband, let's say, when you जैसे fight with फर्स्ट your, आप अपने शौहर के साथ लड़ाई करते हैं, you have a good words in your mouth. क्या आप अच्छे अल्फाजों का मुजाहरा करते हैं या अच्छे अल्फाज बोलते हैं? I will kill you. Don't come. I will not cook for you. मैं तुम्हें मार दूंगी और मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार नहीं करूंगी। Even in Korea, when you become old, like you are men, and when you become old, इसी तरह कोरिया में भी ऐसे होता है, जब हम अपनी उस उम्र के हिस्से में आ जाते हैं, when you become 60, 70, जब 60-70 की उम्र होती है, even when you open your eyes, they beat you. Why you open your eyes? और Why you open अगर your ऐसा होता है eyes? कि इस उम्र के हिस्से में जब भी आपकी आंख खुलती है तो वो आपको मारती हैं। Men's power become very reduced.
तो आदमी की जो कुवत होती है वो कम हो जाती है। So we need to do good things and speak good words to our wives. और उस वक्त उनको जरूरत होती है कि वो कुछ अच्छे अल्फाजों को जो है अपनी वाइफ के लिए बोलना शुरू करें। Today I read about this John chapter 8. I think you know very well this story. और आज जैसे कि मैंने यूहन्ना 8 बाब में से पढ़ा है और मेरा ईमान है कि आप इस कहानी को, इस स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। Why this woman did adultery? इस औरत ने जो है जिना क्यों किया था? As I told you in the beginning, in her heart there is a heart to do adultery. जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जो कुछ हमारे अंदर होता है वो बाहर आता है और उसके अंदर जो था वो बाहर निकल के आया। There is a desire that she had in her heart, और वो कुछ ऐसी ख्वाहिशात थी उसके दिल के अंदर। I do not know what happened to her, but it started to grow and grow and grow, and it became make her do adultery. और मैं नहीं जानता हूं कि उस औरत के साथ क्या ऐसा हुआ था जिस ख्वाहिशों ने उसके अंदर जन्म लिया, वो बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आ गया कि वो जिनाकारी जो है करना शुरू हो गई। But let me ask you then, is it only her that she had, is it the only her that who has heart of adultery? तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सिर्फ वही एक ऐसी औरत थी जिसने अडल्ट्री या जिनाकारी की, एक ऐसा दिल वही रखती थी अपने अंदर? In Korean words, we have these kinds of words nowadays. If some other people they do, it is adultery. But if I'm the one who do, I say romance. तो मैं कोरिया में हमारे यहाँ पे ये अल्फाज चलते हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा गलत काम करे या दूसरा बंदा जिना करे तो वो जिना है, लेकिन अगर मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये रोमांस है। This word has a 4 words, neronambul. ये 4 वर्ड है, नैरो नंबोल। And even this Korean word was introduced in Times magazine. और अभी टाइम्स मैगजीन में भी ये इंट्रोड्यूस हुए वर्ड्स। Because this is not just happened to the only one person. क्योंकि ये सिर्फ एक ही शख्स के साथ नहीं हुआ, It's happening to all people in Korea now. क्योंकि अब ये हर शख्स के साथ हो रहा है जो कोरिया के अंदर मौजूद है। Because law of adultery has cancelled in Korea now. क्योंकि अब जो जिनाकारी का जो लॉ है वो कोरिया में तो कैंसिल हो गया है। So those, I think, I don't know, those politicians, they don't want to be accused. I think that's why they passed this law, like no law for the adultery. I think that's why now many Korean wife and husband, they're in chaos. और हम देखते हैं कि अभी कोरिया के अंदर जो है ये चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। इवन की जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इस लॉ को ही खत्म कर दिया है और अब इस लॉ की वजह से अब हम देखते हैं कि बहुत से जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। Korean moral standard is very high. क्योंकि जो कोरियंस का जो ये मॉरल स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है। Since Joseon dynasty, which is our let's say old history, we were in kingdom and we really followed the morality very very sincerely. क्योंकि हमारा जो है एक पुराना, अगर हम देखें कोरिया के अंदर एक किंगडम्स, एक बादशाही का एक असूल था या एक वहां से ये कबीला कस्बा शुरू हुआ, तो उसमें मोरालिटी के ऊपर, मॉरल्स के ऊपर जो है वो ये बहुत स्ट्रांग है उसके ऊपर। Even in old words, we were saying that Eastern moral standard country. That's how they called us. और यहाँ तक कि वो हमको ईस्टर्न मॉरल कंट्री जो है वो बोलते हैं। Meaning our standard and our morality was very high. और इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा मयार और मोरालिटी जो है वो बहुत हाई है। For people nowadays, outside and inside is different. लेकिन अब हम देखते हैं कि लोग बाहरी तौर पे और अंदर के तौर पे बिल्कुल फर्क हो चुके हैं।
as I told you, if someone else, they do something adultery, we say that's adultery, that's adultery. We condemn them, we accuse them. और जैसे हम देखते हैं कि किसी ने कोई जिनाकारी की है तो हम उसको बोलते हैं ये जिनाकार है और हम उसको इस बात पे पॉइंट आउट करते हैं। If I'm the one who do, we say this is romance. लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं कहूंगा ये तो रोमांस है। And even this woman also has the heart of doing adultery. जबकि ये औरत जिसके बारे में हमने पढ़ा है, ये इसका भी दिल जो था वो जिनाकारी की तरफ था। But as I was asking, is it only her? क्या वो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो होली थी, पाक थी, क्या ये उसके लिए पाकीज़गी थी? Let's ask you all of you. Let me ask you all of you. मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। Yes, by law you shall not do the adultery, of course. बेशक लॉ के हिसाब से तो हम अडल्ट्री, जिनाकारी नहीं कर सकते। But in your heart, you don't have a heart to do adultery. तो क्या आपके दिल के अंदर जिनाकारी मौजूद ही नहीं है? In your heart, you don't have any desire. क्या आपके दिल के अंदर कोई भी ख्वाहिश नहीं पैदा होती है? That is exists in your heart. ये आपके दिलों में एग्जिस्ट करती है, वाकई ही होती है। If you see handsome man, or if you see really good guy, what kind of heart you have? अगर आप किसी को फर्ज करें, ये कहते हैं कि बहुत हैंडसम है या गुड लुकिंग है, तो ये कौन सा दिल है? ये किस तरह की बात होती है आपके मुंह से निकलती है? Not only outward appearance, but he is very kind to you. He always listens to you, and he is really gentle to you. Then, what kind of heart you have? और अगर वो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव के साथ है वो शख्स, और उसका वो बहुत रहम दिल है या वो बहुत केयर करता है, तो वो किस टाइप का दिल है आपकी जिंदगी में, या आप किस तरह से उसको देखते हैं? I know India, somehow your morality also there, and even Pakistan also you have your morality, but I'm asking about the heart of people now. मुझे पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में भी ये चीजें दिखती हैं, लेकिन मैं अभी ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये चीजें जो हैं बुरी हैं या अच्छी हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपके दिल में जो ख्वाहिशात होती हैं वो होती हैं या नहीं होती हैं? आपका दिल किस तरह का है? Even Israel also very serious. और जबकि इसराइल में भी ऐसा है, जो कि बहुत अभी इस वक्त संजीदगी से ये कर रहे हैं। Even these scribes and Pharisees who brought her here before Jesus, also I think they have such heart. और मैं समझता हूँ जिन्होंने यीशु पे चार्ज किया, जिन्होंने यीशु के साथ बुरा किया, सरदार, काहिन, फकीर, फरीसी, सब जो है वो इस चीजों पर इसको मानते हैं, इस चीज को। And they brought this woman before Jesus Christ. और वही लोग यीशु के सामने उस औरत को लेकर आते हैं। And why do we have such kind of heart? क्यों हमारे अंदर इस तरह का दिल आता है? क्यों आता है? Because of the sin in our heart. क्योंकि वो जो गुनाह है वो हमारे दिल में बसा हुआ है। Sin is in everyone. और वो हर एक में है। Everyone has a sin. Even young, even old, all of us has a sin. का बीज जो है वो हर एक के दिल के अंदर है। But the law of Moses लेकिन मूसा के लॉ के मुताबिक cannot interpret the heart exactly. हम नहीं देख सकते इस तरह से एग्जैक्टली इस चीज को कि वो किस तरह से इस जिनाकारी को, इन चीजों को देख रहे थे। But actually, whatever we have in our heart is start to come out in our action, in our emotions, in our emotions, in our life, isn't it? और मेरे ख्याल से कि जो कुछ भी हमारे दिल में होता है वो या तो हमारे एक्शन के जरिए से, या हमारी फीलिंग के जरिए से, या हमारे एक्सप्रेशन के जरिए से बाहर निकल के आता ही है। Whether it's serious or not serious, it is coming out. चाहे वो एक सीरियस बात हो या नॉन सीरियस बात हो, लेकिन क्या वो निकल कर नहीं आता बाहर? Yes, when you see good car, let's say Range Rover is passing by you. आप फर्ज करें एक रेंज रोवर है जो कि आपके सामने से गुजरती है गाड़ी। Are you looking or not? क्या आप उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं? And you can think like this, if that car is my car, it would be really good. और आपकी ये सोच डेफिनेटली आती होगी कि
अगर वाकई ही ये कार मेरी होती तो कितना अच्छा होता। And we are thinking better ones every day to और make better life. और हो सकता है कि हम हर रोज इस सोच को अपनी जिंदगी में लेकर सोचते हो कि काश मुझे भी ऐसी गाड़ी मिल जाए। That's why we are making every day in good way. और इसी तरह हम अपनी जिंदगी में हर रोज अच्छी जिंदगी को गुजारते हैं, अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। Even your house, यहाँ तक कि आपका घर जो है, let's say you are living in a small house, just 1 or 2 rooms. फर्ज करें आपका 1 या 2 कमरों का घर है और आप उसमें रह रहे हैं, But you want to now move to the 3 rooms, 4 rooms, isn't it? और फर्ज करें आपको इससे बड़े घर में जाने के लिए आपका दिल है कि 3 कमरों का हो, 4 कमरों का हो। That's how we are programmed. और ऐसे हम अपने प्रोग्राम्स को चेंज करते रहते हैं। And that is our heart, which is with the sin, actually. और बेसिकली ये हमारा दिल होता है जो जिसके अंदर वो गुनाह बसा होता है और हम उसको देख नहीं पा रहे होते। Though you fight against it, you have बेशक no power to win. आप बेशक उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं कि आप इस पे हावी हो सकें, Can you win against gravity? तो क्या आप उस खिंचाव की तरफ जो है, क्या आप उसके अगेंस्ट उसके साथ लड़ते हैं? Earth is dragging this down. फर्ज करें ये चीज है जो ऊपर पड़ी है और इसको नीचे जाना है, That's why this is falling down. और अगर ये ऊपर होगी तो ये नीचे भी गिरेगी। But let's say you are not trying to fall down, you are holding yourself. और अगर आप फर्ज करें आप इसको नीचे नहीं गिराना चाहते और आप इसको अपने हाथों से पकड़ के रखते हैं, How long can you hold? कितनी देर तक आप पकड़ पाएंगे इसको? You know, pilots, scribes, they did not know they also have the same heart. और हम देखते हैं कि वो लोग जो जिनाकारी के टाइम पर उस औरत को लेकर आए, वो फकीर, वो सरदार, उनको नहीं पता था कि उनका भी दिल इसी तरह का है, वो भी इसी सिचुएशन से गुजरते हैं। So for them, they are thinking that they can keep the law. और वो ये समझते थे कि वो जो ये फरीसी हैं वो ये उस लॉ को फॉलो करते हैं या उसको पूरा करते हैं। But that's very foolish thinking. लेकिन वो उनकी बहुत ही गलत और सोच थी। If God made us to in the flesh, we cannot win against the flesh. अगर खुदा ने हमें जिस्म में बनाया है तो हम जिस्म की ख्वाहिशों के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। And this woman who caught in adultery is the one who in natural way. और अगर उसने ये जिनाकारी की तो वो एक नेचुरल जिस्म की ख्वाहिश थी जो उसकी जिंदगी में आई। When you have no power to control yourself, जब आप अपने आप पर काबू नहीं पाते हैं, let's say you are drunken, फर्ज करें आप नशे में हैं, or you are like let's say emotionally you are somehow sad, या फर्ज करें आप इमोशनली जो है, जज्बाती जो है वो सैड हैं या उदास हैं। when this thing happened to you, और जब इस तरह की सिचुएशन आपकी जिंदगी में आती है, you also have no chance. तो फिर आप भी जो है उस गलत काम को या उस चीज को करने के लिए जो है वो आप कर जाते हैं। Some of us thinking that we need to be good Samaritan. कई दफा आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमको उस अच्छे सामरी की तरह बनने की जरूरत है। But can we be good Samaritans? तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि आप उस अच्छे सामरी की तरह बन सकते हैं? Yes, Pastor, we can do good Samaritan. We can be good Samaritan. और बहुत से लोग ऐसे ही जवाब देते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ और वो कहते हैं हाँ हम अच्छे सामरी बन सकते हैं, हम उस अच्छे सामरी की तरह हो सकते हैं। It's because you do not know who you are. क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप हैं कौन, आप खुद क्या हैं। You do not know who you are, then how you are made. और आपको ये पता ही नहीं होता कि आप कौन हैं और आप किस तरह से बनाए गए हैं या आप किस तरह से पैदा हुए हैं। This scribes and Pharisees is also in our heart. और ये जो सरदार और फकीर और फरीसी थे, ये भी आज हमारी जिंदगियों में इसी तरह से आज ये हमारी जिंदगियों में काम कर रहे हैं।
We want to follow God. कि हमको जो है खुदा को फॉलो करना है We want to keep the word of God. और हमें जो है खुदावन के अहकामात को, शरीयत को पूरा मानना है। But it cannot be done by our own willing. लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि ये हम अपनी सोचों से, अपने ही तरीकों से हम इन कामों को, इन हुक्मों को पूरा नहीं कर सकते हैं। For example, मैं आपको मिसाल देता हूँ, without power, without electricity, can I use this cell phone? क्या मैं पावर के बगैर, इलेक्ट्रिक के बगैर, बिजली के बगैर इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसको चार्ज कर सकता हूँ फोन को? I have a machine, I have a cell phone, I have a SIM card, I have a airtime, I have everything inside this one, but I have no electricity, then can I use this phone? मेरे पास इसमें पैसे भी है, मनी भी है, नेट भी है, डाटा भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर इसमें पावर ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे इस्तेमाल कर पाऊंगा? Let's say you have no heart to love your wife, then can you love your wife? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में आपका दिल ऐसा है कि आप अपनी बीवी को प्यार ही नहीं करते, तो क्या आप उस तरह का दिल पा पाएंगे कि आप अपनी बीवी को प्यार करें? Let me say you have no fire, then can you make rice? अगर फर्ज करें आपके पास आग नहीं है, आपके पास अगर चूल्हा जलाने को लिए नहीं है, तो आप क्या चावल बना सकते हैं? You have no bullet, let's say, can you shoot guns? क्या अगर आपके फर्ज करें आपके पास पिस्तौल नहीं है, तो क्या आप उसको फायर कर सकते हैं? उसमें बुलेट ही ना। Without heart of God that you receive, how can you serve God? मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपके पास खुदा का दिया हुआ वो दिल ही नहीं है जो खुदा की तरफ से है, तो आप कैसे खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? Time to time, when you plug something, वक्त के साथ साथ जब आप कुछ चीज प्लग ऑन करते हैं, let's say this is socket, फर्ज करें बिजली का एक सॉकेट है, स्विच है, it should be entered very properly inside it. और उसको बहुत ही प्रॉपरली उस जगह पर जाना है, क्योंकि वो अगर एग्जैक्टली उस जगह पे जाएगा तो ही प्लग ऑन हो सकता है। What if it's just enter the half or just less? और अगर वो स्विच आधा गया है, तो You do have a trouble. तो क्या होगा कि उसमें मुश्किल आएगी, वो चार्ज नहीं होगा या वो बिजली को खींच नहीं पाएगा। Any machine are saying, और जितनी भी मशीनरीज देख लें सब ऐसी हैं। especially in Uganda, the power is not stable. स्पेशली युगांडा के अंदर जो पावर है उसका बड़ा मुश्किल आजकल चल रहा है, प्रॉब्लम है, या स्टेबल नहीं है पावर। You need to have a power guard, या तो आपको पावर गार्ड की जरूरत होती है, and you need to have an even more good system to secure the power in stable way. और यहाँ तक कि आपको कोई स्टेबलाइजर या कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है जिससे आप अपनी चीजों को बचा सकें, उस पावर को अच्छी तरह से कंज्यूम कर सकें। Without it, though you have a good machine, you say LG, Samsung, or whatever, you have a good machine, it can fall down anytime. लेकिन अगर आपने पावर गार्ड या स्टेबलाइजर अगर नहीं लगाया, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी से अच्छी कंपनी की चीजों को रखा हुआ है, एलजी हो या सैमसंग हो या कोई भी किस्म की, वो जो है खराब हो सकती है बिजली के झटकों से। This woman who had adultery is the one who had no heart of God, who has no heart of God. और मैं ये समझता हूँ कि जो ये औरत जिनाकारी में पकड़ी गई थी, इसके अंदर वो दिल ही नहीं था जो खुदा के साथ कनेक्ट हो सकता। That's why she lived as she wanted. इसी वजह से उसने जैसा उसके दिल चाहा, जैसे उसकी मर्जी थी, वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। Now you see how Jesus is talking to her. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु किस तरह से उससे बात करता है। Is Jesus condemning her with the law of God? क्या यीशु ने उसको लॉ के मुताबिक उसको बुरा कहा या उस पे लॉ साबित किया? Jesus pinpoint the heart of God, the heart of people exactly there. और यीशु ने उसको कुछ नहीं कहा, यीशु ने उन लोगों के दिलों को पिंच किया या उनके दिलों के मुताबिक बात की और सवाल खड़ा किया जो उनके दिलों में बसा हुआ था। He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. और यीशु ने क्या कहना शुरू किया कि तुम में से वो शख्स पहला पत्थर उठाए जिसने खुद कभी गुनाह ना किया हो।
Meaning what? All इसका of you are मतलब क्या है? sin. You all have a sin. कि यीशु बताना चाहता था कि तुम सबके अंदर गुनाह है। Then why you are trying to stone her? Yet you must stone yourself. क्यों तो फिर तुम इसको ऊपर क्यों पत्थर फेंक रहे हो, जबकि पहले पत्थर तुम्हें अपने ऊपर ही फेंकना चाहिए, क्योंकि तुम सब गुनहगार हो। When Jesus Christ penetrates their heart with his word, no one can condemn her because they feel conscious that they are also the same. और जब यीशु ने ऐसा सवाल खड़ा किया, जब यीशु ने उनके दिलों की तरफ, उनके दिलों के ख्यालात की तरफ इशारा किया, तो कोई भी उसमें पत्थर ना उठा सका, क्योंकि सब जानते थे कि हम गुनहगार हैं, हम भी गलत हैं। When we see good things we want to have, और जब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छी चीजें हैं, when we see better one we want to really have in our hand. और जब हम देखते हैं कि कोई अच्छी चीजें हैं, हमको दिख रही है, तो हमारा दिल करता है कि हमारे पास भी हो। But we know that we shall not do it because it's not mine. और जैसे हम किसी और की चीज को देखते हैं, तो हम जब ये एहसास करते हैं कि हमारे पास भी हो, लेकिन हमें पता होता है ये हमारे पास नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारी नहीं है। But though we know, time to time, I think we break sometimes and we steal before, like in our और life, हो I think. सकता है कभी कभार या कभी ऐसा हुआ भी हो कि हम इसको नहीं पा सकते, उन चीजों को जिसकी ख्वाहिश करते हैं, तो कई दफा वो चोरी की सूरत में भी आ जाती हैं, कि चोरी कर ली जाती है वो चीज। Yeah, I know you must follow word of God. You must live spiritual life very sincerely, but time to time your heart cannot follow. मैं जानता हूँ और मैं इस बात को मानता भी हूँ कि हम खुदा के कलाम को मानने की कोशिश करते हैं, उसके हुक्मों पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम प्रॉपर तरीके से इस तक हावी नहीं हो पाते। Then that is not the time that you condemn yourself. और वही एक वक्त होता है जब हम अपने आप को कंडेम कर सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं, बारे में बोल सकते हैं, उस चीज का इनकार कर सकते हैं। Then that is time you need to connect your heart very closely, very well, much more directly. और वही एक वक्त होता है जब हम अपने आप को खुदा के साथ कनेक्ट करते हैं और हम क्लोज जाने की कोशिश करते हैं खुदा के। When I see my life, I'm doing like this and that, meaning what? I need word of God, I need fellowship, I need servant of God. Thus, you must step closer to the word of God when you see your life is going in fleshly way. और आप जब देखते हैं कि आप जिस्मानी तौर पे खुदा से दूर हो रहे हैं, तो कई बार आप कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें फेलोशिप की जरूरत है, हमें अच्छे पास्टर की जरूरत है, हमें चर्च जाने की जरूरत है, हमें कलाम पढ़ने की जरूरत है। आप अपनी सोचों के मुताबिक अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से खुदा के करीब आ जाएं। It's not your time to squeeze yourself to do something which you cannot do. It's not all right. It's not that way. ये सही नहीं है कि आप अपने तरीके से इन चीजों को करने की कोशिश करें। Though you squeeze yourself, nothing can come out. आप भले अपने आप को स्क्वीज करके रखें, पर कोई भी चीज आपको इस तरफ नहीं ला सकती है, Your heart become more stressful. क्योंकि ऐसे करने से आप और ज्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे। जब आप उस पर काबू नहीं पा पाएंगे अपनी हरकतों पर या अपने कामों पर, तो आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। You start to close your heart to God and servant of God and to the church. और आप अपने दिल को और ज्यादा जो है वो कोशिश करेंगे खुदा के करीब लाने की, खुदा के बंदे के करीब, खादमों के करीब लाने की, चर्च के करीब लाने की। Why God gave us the law then? मैं आपसे ये कहता हूँ कि खुदा ने हमें लॉ, हुक्म क्यों दिए। Romans chapter 3, हम देखते हैं रोमियो 3 बाब verse 19. उसकी 19 आयत से। It says, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। आमीन। Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. क्योंकि शरीयत के अमाल से
कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान होती है। Meaning, through the law, we know that we have sinned. इसका मतलब ये है कि जब लॉ हमें दिया गया या लॉ जब हम पहचानते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ गुनाह है, हमारे अंदर ये गुनाह की सूरत में मौजूद है। But now, Pharisees and scribes in a wrong way. लेकिन हम देखते हैं कि वो फकी फरीसी किसी और एंगल में इस कलाम को लेके जाते हैं। It's like how Adam and Eve is trying to cover themselves with the fig leaves for और हम themselves. देखते हैं ये ऐसा है जैसे आदम और हवा ने अपना गुनाह ढांकने के लिए, अपना नंग ढांकने के लिए उन पौधों का, उन पत्तों का सहारा लिया जो कि अंजीर के पत्ते थे, उनसे अपने आप को, अपना कफारा खुद ही करने की कोशिश की। But it dries out. It just लेकिन वो तो disappears. सूख जाएंगे, वो तो पत्ते हैं, They cannot cover themselves. वो अपने आप को कभी भी अपनी एफर्ट से, अपनी तरीकों से कवर नहीं कर पाते थे या कर पा सकते थे। Bible clearly says, बाइबल इसको बहुत ही वाजिया तौर पे बयान करती है, therefore by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान होती है। Whatever they try to keep, whatever they do by themselves, in the eyes of God, they are not justified. बेशक हम कुछ भी करें, हम कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, अपने आप को कवर करने की कोशिश करें, लेकिन खुदा की नजर में हम वैसे ही रहेंगे। You know, I think in Pakistan, India, there are some men who wants to be women. और मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया में कुछ ऐसे मर्द हैं जो कि औरतें बनने की कोशिश करते हैं। Do you have? यस। Yes, in the Philippines, they are very serious. Philippines, Thailand, very serious. There are so many people. और फिलीपीन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े सीरियसली इस काम को कर रहे हैं। You know, they are bakla. We call them bakla. और हम इसको अपनी जुबान में बाकला बोलते हैं। You know, this bakla, they are men. They have a Adam's apple. Sorry? They have a Adam's apple here. They have a Adam's apple. They have a throat, man's throat, which is coming out like this. We call Adam's apple, which is coming out. Yeah. और वो अपने आप को जो है वो होते लड़के हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी ये जो यहाँ पर ये चीज जो होती है वो उसको शायद बाहर लेकर आते हैं। I don't understand properly. Girls when they speak, their voice is they're very thin. गले की जो हड्डी होती है ना, एडम्स एप्पल जिसे कहते हैं, गले की जो लड़कों की हड्डी होती है। हाँ। जैसे औरतों की आवाज जो होती है वो बारीक होती है, लेकिन जो मर्दों की जो आवाज होती है वो जरा भारी होती है, और इसकी ये जो हड्डी होती है यहाँ पर, girls' voice is not they are not low like this. और हम देखते हैं कि औरतों की आवाज हैवी नहीं होती है, औरतों की आवाज एक नरम आवाज होती है। Hello, they cannot do like this. और वो इतनी बुरी आवाज में, इतनी मोटी आवाज में नहीं बात करती हैं। And our man's voice very thick, very thick. और लेकिन मर्दों की आवाज एक स्ट्रॉन्ग आवाज होती है, एक मोटी आवाज होती है। But girls, their voice is very light, लेकिन औरतों की आवाज जो होती है उसमें वो एक पोलाइटनेस होती है, एक लाइट होती है वो वॉइस। Yeah, some of them they have a thick voice, but mostly women they have a light voice. बहुत सारी जो हो सकता है कुछ औरतों की भी मोटी आवाज हो, लेकिन मोस्टली औरतों की आवाज जो होती है वो पतली होती है, जो है कम होती है, सॉफ्ट होती है। And now this bakla who wants to be girl, they change their voice. तो ये जो बकला होते हैं, जो मर्द औरतें बनने की कोशिश करते हैं, वो पहले अपनी आवाज के सिस्टम को चेंज करवाते हैं।
hello, hello. They speak like this. और वो इस तरह से बोलने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक बड़ी नजाकत से बोलना होता है। And they put fake hair. और वो नकली बालों को, विगों को इस्तेमाल करते हैं। And they put lip gloss. और वो लिपस्टिक्स लगाते हैं। And they do makeup like girl. और वो औरतों की तरह मेकअप करते हैं। They put tank top like girl. और वो अपने जिस्म को औरतों की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। They have no breast. Actually, they have no breast, but क्योंकि they make fake breast. और वो अपने आप को औरतों के जिस्म के मुताबिक जो है उन अज़ा को बनाने की कोशिश करते हैं। And even their hip, they put some clothes. What? I don't know exactly, but they put something to make big. और हो सकता है वो कुछ अपने हिप्स को जो है बड़ा बनाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल चीजों का यूज करते हो, जो कि अभी बाहर के मुल्कों में बहुत आम है और आप लोग सब इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। And they start to move like like this. और वो सब पास्टर in our countries we called like some words is there for those people like khusra, hijra or something like that. That is Yes, like you are saying bakala, we are calling like that words. Yes, they change. Yes. They come, hello, I love you. They speak like they want it to be girl, and they start to pretend that they are girl. और वो पहले अपने जिस्म को चेंज करते हैं, अपनी आवाजों को चेंज करते हैं, अपना हुलिया चेंज करके औरत के मुताबिक बनाते हैं और फिर वो और आदमियों के साथ जो है वो कॉल्स करते हैं या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनको जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। They start to come and touch you. और फिर वो उनको छूने की कोशिश करते हैं। But we know, men, we know. लेकिन मर्द जो है वो जानते हैं He is man. कि ये एक मर्द है। He is trying to act like woman, but he is man. मर्दों को पता होता है कि ये एक एक्शन कर रहा है या ये एक बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये औरत नहीं, एक मर्द है। He cannot cheat me. ये मुझे धोखा नहीं दे सकता है। He cannot cheat. He cannot cheat other men. और ये किसी और मर्दों को भी जो है वो चीट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है इनका। If you are proper man, अगर आप वाकई ही सच में एक मर्द हैं, you know exactly this is transgender or this is bakla or this is woman or not. You know exactly. अगर तो आप एक सही मर्द हैं, आप पहचान कर जाएंगे कि ये एक नामर्द है या सॉरी एक मर्द है पर एक नामर्द बनने की कोशिश कर रहा है, या ये एक बकला है या ये एक हिजड़ा है, आप समझ जाएंगे उसको। God is the one who made us people. Then can he deceive by us by keeping the law, doing the deeds of the law, that we pretend ourselves we are just, we are righteous? Can we deceive God? खुदा ने हमें जैसा बनाया है खुदा को पता है, लेकिन जिस्म की वजह से जब हम जिस्मानी तौर पे पैदा होते हैं तो अगर हम अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या खुदा को नहीं पता चल रहा होता कि हम खुद से ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम पैदा किस में हुए हैं? God has eyes to see your middle of your heart exactly. Then can you lie to God? Can you cover before God, not showing your heart? But he actually is seeing your heart exactly. क्योंकि खुदा एक वो वाहिद जात है, एक ऐसी हस्ती है, चाहे आप अपने दिल को कितना भी छुपा लें, आप अपनी गलतियों को, अपनी एफर्ट्स को कितना भी छुपा लें, आप खुदा की नजर से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि एक वो वाहिद एक जात है जो आपको अंदर से जानती है कि आप किस तरह के दिल को, आपका दिल किस तरह का है। Even me, I am young pastor, but I am trained. During this training, I listen to the many testimony, many heart-changing story. But can I not know that whether you change your heart, but you are pretending? I even know.
इवन के मैं भी एक यंग पास्टर हूँ और मैंने बहुत सारी जो है गवाहियों को सुना है, मैं ट्रेनिंग भी ली है, मैं ले रहा हूँ, और जब मैं इस तरह के लोगों से मिलता हूँ तो क्या मुझे समझ नहीं आती कि किसका दिल किस तरह का है। यकीनन मैं भी समझ पाता हूँ कि कौन किस दिल के साथ जो है वो खुदा के साथ चल रहा है। Then even God, who made us and who know everything, and even He knows our all the number of our hair itself, then can He not know our heart, the middle of our heart? और मैं ये सोचता हूँ जब खुदा हमारे एक एक बाल को भी जानता है और उसको पता होता है कि कितने बाल हमारी बॉडी में या हमारे सर पर हैं, तो क्या वो हमें पर्सनली तौर पर नहीं जानता है कि हम हैं क्या असल में। So the righteousness is not really engaged with the law. जो रास्तबाजी है वो हमको लॉ के साथ जोड़ नहीं सकती है, शरीयत के साथ जोड़ नहीं सकती है। Verse 21, let's read. हम पढ़ेंगे रोमियो 3 की 21 आयत। But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. यस, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। आमीन। What does it mean? इसका क्या मतलब है? Righteousness of God is apart from the law. कि हम देखते हैं कि शरीयत के बगैर जो है वो खुदा की रास्तबाजी है, शरीयत के बगैर। And it was hidden, it was not seen. और वो दिखाई नहीं देती है। And law is the one which is witnessed, and the prophet is the one who witnessed about the righteousness of God. और हम देखते हैं कि खुदा की रास्तबाजी की गवाही कौन देता है? वो नबी भी गवाही देते हैं और शरीयत भी जो है, लॉ भी है, वो गवाही देता है कि खुदा रास्तबाज है, खुदा की रास्तबाजी है। Verse 22. 22 आयत में देखेंगे, Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं। Faith in Jesus Christ. यीशु पर ईमान लाना। To have righteousness of God. यीशु पर ईमान लाने का मतलब है कि आप खुदा की रास्तबाजी को पाते हैं। To all and one, all who believe, for there is no difference. और जो भी इस बात पर ईमान लाएगा उसमें कोई फर्क नहीं है। Yes, this is the character of righteousness of God. क्योंकि यही वो एक करैक्टर है, खुसूसियत है जो कि खुदा की रास्तबाजी को जाहिर करती है। And now, how can we obtain the righteousness of God is believing Jesus Christ and believing in Him. There is no any difference. All people should have this course. और हम देखते हैं कि हर इंसान ऐसा ही है, हम किसी तरह से भी जो है वो इस चीज को पर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं और हमें खुदा की रास्तबाजी की जरूरत है। And now they all depart from Jesus Christ. और हम देखते हैं कि तमाम जो है वो यीशु मसीह से डिपार्ट हैं। Back to John chapter 8. हम वापस यूहन्ना 8 बाब में जाएंगे, Verse 7. और 7वीं आयत को देखेंगे। 8, 9. Let's read 9. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one. वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई।
beginning with the oldest even to the last, and Jesus was left alone and woman standing in the midst. और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई. They all believing their own consciousness. क्योंकि हर एक जो था वो अपनी सोचों के मुताबिक जो है वो सोच करके उनको पता चल गया था कि हम भी गुनहगार हैं. वो निकल गए. And now you listen here. और अब आप यहाँ सुने इस बात को. When Jesus had raised himself up and saw no one but woman, he said to her, "Woman, where are those accusers of yours?" यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? Has no one condemned you? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? Yes, by the law of Moses, she must stone to death. बेशक लॉ के मुताबिक, जो मूसा को लॉ दिया गया था, उसके मुताबिक उस औरत को मरना या संसार होना जरूरी था. And that's what she knows exactly. और यही वो जानते थे. और वो औरत भी That's why जानती थी. all people they have a stone to kill her immediately now. इसी वजह से वो तमाम लोग उसको पत्थर लेकर उसके पीछे उसको मारने की कोशिश कर रहे थे. But Jesus, by his word, all the heart was revealed. लेकिन यीशु ने अपने अल्फाजों से, उस कलाम से उनके दिलों को ही तब्दील कर दिया. He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. और उसने कहा कि तुम में से पहला पत्थर वो उठाए जिसने खुद कभी गुनाह ही ना किया हो. And now all they are sinners. क्योंकि वहां जितने भी मौजूद थे सब गुनहगार थे. Woman who committed adultery is sinners. यहाँ तक कि वो औरत जिसने गुनाह किया वो, And those people who bring the stones are the sinners. और जो लोग उसके पत्थर लेकर उसके पीछे पड़े हुए थे वो भी गुनहगार थे. Pharisees are sinners. फरीसी भी जो थे वो गुनहगार थे. Scribes are sinners. जितने फक्की थे वो भी गुनहगार थे. But they all went away. लेकिन सारे के सारे वहां से चले जाते हैं. Why? क्यों जाते हैं? They are trying to cover themselves again. क्योंकि वो अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं. They don't want to be revealed. क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने आप को जो है वो नहीं बदल सकते. So the gift of God, the salvation is to those who are being revealed their sin. तो जो सल्वेशन है, जो नजात है, जो खुदा की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है, वो ये है कि खुदा हमें बचाता है, खुदा हमें कवर करता है. हम अपने तरीकों से कवर नहीं हो सकते. It's not only physically like this woman who committed adultery. मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसे फिजिकली उसने जिस्मानी तौर पर इस जिना को किया, ये ऐसा नहीं है. But spiritually, those who realize their sin. लेकिन रूहानी तौर पे जो लोग एहसास करते हैं कि वो गुनाह करते हैं या गुनाह में हैं, Those who know that they are evil, they are sinful, they cannot change, they are the ones who come before Jesus Christ. लेकिन वो लोग जो इस बात को मानते हैं कि हाँ हम गलत हैं, हम गुनहगार हैं, हमारे अंदर गुनाह है, लेकिन जब वो यीशु के पास जाते हैं, जब वो इस चीज को मान लेते हैं, And now Jesus says, तो यीशु अब कहता है यहाँ पर, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? यीशु ने सीधे होकर कहा कि औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया? She said, No one, Lord. वो कहती है कि किसी ने भी नहीं. And Jesus said to her, और फिर यीशु से कहता है, Neither do I condemn you. मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, Go and sin no more. फिर गुनाह ना करना. The heart of Jesus is entered into her heart. क्योंकि खुदा का जो यीशु का जो दिल था वो उसके अंदर एंटर हो गया था. यीशु मसीह उसके अंदर एंटर हो गया था. Who saved me is not Lord Moses. क्योंकि वो जान चुकी थी कि मुझे किसने बचाया. मूसा के लॉ ने मुझे नहीं बचाया. The word of Jesus saved me. यीशु के उन अल्फाजों ने, उस कलाम ने मुझे बचाया है, इसलिए यीशु उसके अंदर उतर गया. Eventually, she can believe in Jesus.
और वो इस तरीके से या इन कामों की वजह से, इन बातों की वजह से या उस पूरे वाक्य की वजह से उसने यीशु पर ईमान लिया। Totally, when she brought by those people before Jesus Christ, she has no any hope. क्योंकि जब वो इन लोगों में गिरफ्तार थी तो उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं थी कि आज वो बचेगी। उसे पता था कि उसको मरना है। But you see, no one Lord. लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी खुदा नहीं है। Jesus became her Lord. क्योंकि यीशु ही खुदावंत है, वो खुदावंत हमारे लिए होकर आया। Without Jesus, she will just stone. When they noticed, they just stone her and she already died. She know. और उसको पता था कि यीशु के बगैर, अगर यीशु ना होता तो आज उन पत्थरों ने, उन लोगों ने मुझे मार देना था। And Jesus changed the situation by his word and revealing their hearts and convicting their heart with his word. And who is the hope of her is only Jesus Christ, only the Lord Jesus Christ to her. और हम देखते हैं कि पूरी उस सिचुएशन को किसने तब्दील कर दिया? सिर्फ और सिर्फ यीशु एक ऐसी जात थी जो खुदावंद होकर आया। वो उसने उस औरत को अपने अल्फाजों से, अपने जो कलाम था उससे उसको चेंज किया, उस पूरी सिचुएशन को चेंज कर दिया। और जो औरत पहले उन लोगों को देख रही थी जो उसके पीछे पत्थर लेके आ रहे थे कि मरेगी, लेकिन अब उसकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ठहर जाती। Many people still have their own hope for their own selves. और हम देखते हैं आज भी बहुत से लोग हैं, उनको बहुत सारी चीजों पर उम्मीद होती है, उनको होप होती है। No one is hopeless like this woman. और कोई भी जो है, हम देखते हैं कि कोई होपलेस नहीं है इस औरत की तरह। हर If एक you उम्मीद है। know that you are hopeless, if you know that you have no way but following Jesus, you will follow. और मैं कहता हूं कि अगर आज आपको उम्मीद ही नहीं है किसी से, आपके अंदर आप उस होपलेस हैं, आपको किसी के ऊपर उम्मीद नहीं है, तो आज आप यीशु को अपनी जिंदगी में लेकर यीशु पर होप ले आए और वही आपकी मदद करेगा। If you find yourself and try and realize yourself that you are like this woman who caught in adultery, then your Lord will be Jesus, not you. और मैं आपसे सच कहता हूं कि अगर आज आप अपने आप को उस जिनाकार औरत की जगह पर रख कर देखें कि मैं वो औरत हूं जिसने वो गुनाह किया, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिसको पता है कि आज उसको मरना है या अब मुझे मरना ही है, तो आप यीशु पर ईमान लाएं। यीशु आपकी उम्मीद है और यीशु ही आपके लिए खड़ा है आगे। If you know who you are, if you know how you are, you cannot believe who you are. अगर आपको पता है आप क्या हैं, कैसे हैं, तो फिर आप अपने ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे और ना ये आपको करना चाहिए। And even you want to not to follow you, even you don't want to listen to you, even you don't want to consider yourself, you will be very low and humble and you will be very evil and sinful person. और अगर आप अपने आप को बहुत आजिज कर लेते हैं, नीचा कर लेते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं है, तो आप वाकई ही उस फजल को, उस प्यार को, उस ग्रेस को जो है वो पा पाएंगे। And your hope is not yourself, but the word of God, but the Jesus, but his guidance of God. और मैं समझता हूँ फिर आपकी उम्मीद आप अपने ऊपर खुद पे नहीं रखेंगे, क्योंकि कई बार हम खुद ही उम्मीद रख के खुद उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ यीशु पर, उसके कलाम पर, उसके निकले हुए अल्फाजों पर, खुदा के कलाम पर, बाइबल पर भरोसा करेंगे, तो वही आपकी उम्मीद बन जाएगा। That is the person who are in the right condition to receive grace and guidance of God. और ऐसा शख्स जब वो इस कंडीशन में आ जाता है जो सिर्फ खुदा के कलाम पर भरोसा करने की कोशिश करता है या यीशु पर, तो वो वाकई ही उस स्टेज पर होता है जहां फजल उसके ऐन ऊपर होता है, जो उसको कवर करने के लिए तैयार रहता है। It's not according to how you think, it's not according to how you plan, it's according to how your position of your heart is, your spiritual life and your life being led by God. और ये ऐसा नहीं है कि आप क्या हैं, कैसा करना चाह रहे हैं, ये वो पोजीशन होती है जब आप तैयार हो जाते हैं यीशु की गाइडेंस को लेने के लिए,
और उसके फजल को लेने के लिए, तो ये वो सिचुएशन होती है। So this woman who committed adultery was totally hopeless. और जिसने वो गलत काम किया, अडल्ट्री की, गुनाह किया, उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं थी। All this world now know that she is the one who committed adultery. Correct. और जितने भी लोग हैं इस वक्त वो यही जानते हैं कि इस औरत ने गुनाह किया, जिना किया। What does it mean? She has no any reasons, no any excuses, but she herself realized that I must die. She know exactly she is very sinful and dirty woman now. जबकि वो खुद अपनी नजर में ये जानती थी कि वो गुनहगार है, उसको पता था उसने जिना कर दिया है, उसको पता था कि उसको मरना है, पर वो अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो क्या, जबकि उसने वो काम किया हुआ था। She know that she cannot protect herself. और उसको पता था कि वो अपने आप को बचा नहीं सकती है। Whatever she speaks in good way, in or anyhow crying, what everything become useless now. और बेशक वो कुछ भी अपने बारे में बोलती, एक्सक्यूजेस देती, कुछ भी कहती, पर वो होपलेस थी। Whatever comes from her is now cannot be told, cannot be rightful. क्योंकि कुछ भी उसके अंदर से निकलता, कुछ भी वो बोलती, उसको कोई उम्मीद नहीं थी। That's why she could accept the word of God through Jesus Christ immediately in her heart. और जब उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसे पता था उसको मरना है, तो जब उसने उस कलाम को रिसीव किया, जब यीशु की बातों को उसने रिसीव किया और वो उसके दिल में एंटर हुई, तो उसके पास चूंकि कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ नहीं था, तो वही एक चीज उसके सामने थी और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। Why you cannot follow word of God? तो आप क्यों नहीं खुदा के कलाम को फॉलो करते? Because your heart is not in the position of led by word of God. क्योंकि आपकी सिचुएशन वो सिचुएशन है जब वो औरत उन मुश्किलों में थी, उन लोगों में घिरी हुई थी। आज हम भी उन्हीं चीजों में घिरे हुए हैं और हमारे पास दूसरी तरफ नजरें देखने को है, और हम सिर्फ यीशु के कलाम को नहीं देख पा रहे हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। You still have so much good expectation towards yourself and your life. क्योंकि आप अभी तक बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं जो आप अपनी जिंदगी से और लोगों से रखते हैं। You still thinking that you are good and you can be changed anyhow by yourself. That's why you cannot be led by word of God. और क्योंकि वजह ये है कि आप अभी तक इसी चीज में गिरफ्तार हैं कि आप अपने आप को तब्दील कर लेंगे, आप लॉ को मानेंगे, आप अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, और यही वो वजह है कि अभी तक आप खुदा की उस ब्लेसिंग को, उस फजल को हासिल नहीं कर पाए। That's why you cannot have blessing of God in your heart, in your इसी life. वजह से आपकी जिंदगी में खुदा की वो ब्लेसिंग नहीं मौजूद है। And this woman who committed adultery, और वो औरत जिसने जिनाकारी की, she has no any other hope. उसके अंदर कोई उम्मीद थी ही नहीं, क्योंकि वो उम्मीद हार चुकी थी। She knows very much well herself that how evil she is. क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो कितनी गुनहगार है, She cannot trust herself. और उसको पता था वो बचेगी नहीं। She cannot make even willing, and she cannot make herself any heart, any makeup heart. She cannot do anything in her heart. क्योंकि वो जानती थी अब वो खुद से कुछ नहीं कर सकती, अब वो अपने दिल को कितना भी समझा ले, कुछ भी नहीं हो सकता। Only one who is speaking her or speaking before her, the Jesus Christ become her true Lord in her heart. और हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिस बात को उसने रिसीव किया, जिस चीज की तरफ उसने निगाह की, वो था हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने उसको उम्मीद दिलाई। She knows the heart of Jesus towards her is love. और वो जान चुकी थी कि ये जो खुदावंद यीशु मसीह का दिल है उसकी तरफ, वो कितना हम्बल और कितना आजिज है उसके लिए। Verse 12, हम 12वीं आयत को देखेंगे। then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of the light. यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा।
आमीन। Who is following Jesus Christ now? अब कौन ऐसे हैं जो कि खुदाम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं? These people surrounding Jesus Christ? No. क्या वो जो यीशु के इर्द गिर्द लोग फिरते थे वो फॉलो करते थे? Woman who caught नहीं, in adultery is the one who walking with him, Jesus Christ. क्योंकि वो ही जो है उसकी तरफ वो औरत जिसने अडल्ट्री की वो ही सिर्फ यीशु की तरफ आई। बाकी जितने भी इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, सिर्फ उस औरत ने यीशु को कबूल किया। Because through the adultery, she was totally emptied herself. She lost everything in herself. और हम देखते हैं कि उसने अपने आप की सारी उम्मीदें खो दी थी क्योंकि वो गुनाह कर चुकी थी और वही एक वाहिद एक ऐसी थी जिसको कोई उम्मीद ही नहीं थी किसी चीज से। But the word of God become the everything in her life. लेकिन खुदा एक वाहिद वो एक था, वाहिद उसके लिए होप थी जो उसकी जिंदगी में तमाम तरह की खुशियों को और होप को लेकर आया। All these Pharisees, they are thinking that they are the one who can keep the law, they are the one who follow God well, but they are believing themselves. लेकिन बहुत से जो फकी फरीसी और लोग थे वो ये सोचते थे कि वो खुदा के लॉ को मानते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन असल हकीकत में वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखते थे, अपनी सोच के मुताबिक चलते थे। Yet they are sinner like a woman who caught in adultery. वो भी एक ऐसे लोग थे जो कि उस औरत की तरह थे जिसने जिना किया। In the eyes of God, they are same. और खुदा की नजर में तो वो सारे एक जैसे थे। The woman who caught in adultery, she realized herself. और जिस औरत ने जिना किया उसने अपने अंदर ये रियलाइज किया। But scribes and Pharisees, those people who was surrounding her, was not knowing themselves. जबकि जितने लोग उसके इर्द गिर्द थे फकी फरीसी उन्होंने अपने अंदर रियलाइज नहीं किया इस चीज को। I hope our brothers and sisters always you remember your true image before God, and you shall not believe yourself but the word of God. और मेरा ईमान है कि आज जितने भी हमारे बहन भाई हमारे साथ मौजूद हैं वो अपने ऊपर अपनी सोचों पर इन्हिसार नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, उसी को ही देखेंगे कि एक वाहिद वही एक उम्मीद है जो हमारे सामने है। And the Jesus will be your light of the world. और यीशु ही आपके लिए वो नूर है, वो रोशनी है जो आपको अंधेरे से निकाल के रोशनी में लेकर आएगी। Let us have a time of our prayer ourselves. 1 minute. हम सब अपने जो है अपने आप को अपनी आंखों को बंद करेंगे और रियलाइज करेंगे और 1 मिनट की दुआ बड़ी संजीदगी के साथ करेंगे 1 मिनट के लिए।